So guys, we have a question from November 2019, paper 22, question 3 part A says, explain how knowledge of PED for a good can help businesses to assess the impact of price changes upon their total revenue. So I'm going to be explaining how to attempt this question, but before that, we're going to be simultaneously doing how we will attempt this question as well and what we will have to write, as well as the concept of how PED impacts total revenue. Remember, you first need to identify the subject matter. What does the subject matter mean? Subject matter means that what topic the question is asking on. The topic that the question is asking on is PED. So you have to first define what PED is. सबसे पहला स्टेप हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिफाइन पीडी. सबसे पहला हमने करना है डिफाइन पीडी. सही है ना, पीडी ये होता है. फिर हम उसके अंदर देन वी कैन गो ऑन, देन वी कैन से दैट पीडी हैज एन इम्पैक्ट, द चेंज इन प्राइस हैज एन इम्पैक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू. फिर हम क्या बोलेंगे, चेंजेस इन प्राइस हैज एन इम्पैक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू. फिर हम क्या करेंगे, हम टोटल रेवेन्यू को भी डिफाइन करेंगे कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इट्स प्राइस टाइम्स क्वांटिटी. सेल्स को कहते हैं टोटल रेवेन्यू, राइट. सो विल डिफाइन व्हाट पीडी इज, विल डिफाइन व्हाट इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड इज. अच्छा गाइस, यू वोंट रियली बहुत ज़्यादा हम इसमें हमें बताना पड़ेगा व्हाट इलास्टिक डिमांड मीन्स, व्हाट इनइलास्टिक मीन्स. वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ an elastic demand, that is a shallow slope. We can draw a graph for inelastic demand, that is a steep slope. By the way, I've recorded the PED की 2 videos on YouTube last night, तो आप लोग देख सकते हैं वो, ठीक है. Okay. So basically, so yeah, तो पहले तो हम ये करेंगे. Then we'll go on by saying that the impact of price changes on total revenue depends on PED. How much revenue is impacted, how much the revenue will be impacted depends upon the PED. टोटल रेवेन्यू के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है. बिकॉज प्राइस चेंज होना, इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग, सो वी नो दैट इफ प्राइस इज फॉर इंस्टेंस इंक्रीजिंग एंड द डिमांड इज इलास्टिक, राइट. इफ द डिमांड इज इलास्टिक एंड PD is elastic and price is increasing, total revenue will actually end up falling. And if price is elastic and if you decrease the price, total revenue will rise. If the demand is inelastic, that is, it is not that responsive to a change in price. If you increase the price, total revenue will rise. If you decrease the price, total revenue will fall. Now, these are just the simple rules, right? ये आपने शुरू में बता देने कि ये rules है. फिर then you will go on saying कि let's see how this process actually works. ये आपने एग्जामिनर को बता दिया कि देखो पीडी का इम्पैक्ट, जो प्राइस चेंज का इम्पैक्ट पीडी, अगर पीडी इलास्टिक है तो ये आएगा. ये आपने नॉलेज दे दी. दिस इज व्हाट, इसको क्या कहते हैं, नॉलेज. ये नॉलेज है. अच्छा भाई, अच्छा ऐसा होता है. दिस इज जस्ट द नॉलेज. असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 मीट हो गया. उसके बाद फिर हम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 और 3 की तरफ आएंगे, जो कि क्या है, एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस. वेरी गुड. फिर हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे. हम कहेंगे कि देखें, it is very important for businesses to know the PED. Why is it very important for businesses to know the PED? It is very important for businesses to know the PED because it helps them make pricing decisions. It helps them make the right pricing strategies. If you know that the demand of your product is elastic, you will design your pricing strategies and pricing policies and pricing decisions accordingly. Because let's say if your demand is elastic, it means that you might have a lot of substitutes and you might have very close substitutes, right? So if you know that your demand is elastic, you won't really end up increasing your price, because if you do that, your total revenue will fall, right? So that is why, Hamza, PED is very important. और ये बहुत frequently tested question है, और ये जून 2022 के अटेम्प्ट में आ भी सकता है, बिकॉज पीडी पे एंड रेवेन्यू पे क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में नहीं आएगा. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस टू नो देयर पीडी, बिकॉज इट हेल्प्स देम मेक द राइट प्राइसिंग डिसीजंस एंड द राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, राइट. बिकॉज प्राइस हैज एन इम्पैक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू. हाउ डज इट हैव, लेट्स सी. So for example, if the demand is elastic, firms should reduce the price to increase total revenue. ये आपने नॉलेज ली. अब हम आएंगे इसकी एक्सप्लेनेशन एनालिसिस पे. देखें, फॉर एग्जाम्पल यू ड्रॉ एन इलास्टिक डिमांड कर्व. आप बोलेंगे द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन इलास्टिक डिमांड कर्व. डायग्राम बनाना है बिल्कुल क्लियर, बड़ा बड़ा. देखो, डायग्राम जब क्लियर बनता है ना, वो बड़ा बनता है. इधर देखिए हमजा, आपका अटेंशन बोर्ड पे होनी चाहिए. उसका फ़ायदा ये होता है कि जब एग्जामिनर की नज़र डायग्राम पे पड़ती है, वो इस डायग्राम को देख के समझ जाएगा कि आगे बच्चे ने क्या, मेरे आगे अब आने क्या वाला है. मतलब अभी उसने पूरा पेज आपका पढ़ा नहीं होगा, लेकिन डायग्राम देख के उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे अब जो एक्सप्लेनेशन आने वाली है ना, वो कुछ इस तरह की होगी. जितना फारिग डायग्राम होगा, जितना बेकार अनटाइडी एक्सेस लेबल नहीं होंगे, उतनी ज़्यादा एग्जामिनर के जहन में ये एक्सपेक्टेशन बिल्ड होगी कि एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ही बेकार होगी. अगर डिमांड इलास्टिक है तो हमें नज़र आ रहा है कि फर्म्स रिड्यूस द प्राइस फ्रॉम P1 to P2. We see that the quantity demanded rises from Q1 to Q2.
And we can see from the diagram as well that this difference, this vertical difference, right, this change, right, this change in price is less than, you know, the change in quantity. हमें quantity में change ज़्यादा नज़र आ रहा है, हमें price में change कम नज़र आ रहा है, ठीक है. अब बात ये है कि if you say to me that if you reduce the price your revenue will fall, एक सवाल आ सकता है कि सर अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देंगे तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा. आप मुझे एक बात बताएं, आउटफिटर्स ने सेल लगाई हुई थी कल लास्ट जगह 30% ऑफ चल रहा था आउटफिटर्स पे. आप ज़रा मुझे बात बताएं, आपके ख्याल में आउटफिटर्स ने अगर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस 30% से गिरा दी तो आउटफिटर्स को क्या रेवेन्यू में लॉस हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा. क्यों? आउटफिटर्स ने क्वांटिटी पे खेला, दे प्लेड ऑन क्वांटिटी, ट्राई टू कैच अप ऑन द राइज इन क्वांटिटी. इतना रश था स्टोर में, मैं कल गया था अपने लिए जीन्स लेने के लिए, लिटरली इट वाज फ्लडेड because the increase in quantity or the change in quantity, the increase in quantity was significantly higher than the fall in price. And this is how you will actually end up analyzing the diagram. These are the keywords with proper explanation. Only then you will be able to score good marks. So what I am saying is that फिर आप ये diagram बनाएंगे, आप बोलेंगे the green area represents the revenue that is lost, the blue area represents the revenue that is gained. Obviously एग्जाम में आप कलर में तो बना नहीं सकते, ठीक है, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब वैसे भी अपनी कॉपी स्कैंड हो जाती हैं. सो बट अगेन पेंसिल से आप बना सकते हैं. फिर आप एग्जाम में लिख दें कि ये वाला ऐसे लिख दें कि रेवेन्यू लॉस्ट है, ये रेवेन्यू गेंड है. एंड वी कैन सी दैट द रेवेन्यू दैट इज गेंड हमजा इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द रेवेन्यू दैट इज लॉस्ट. जब रेवेन्यू गेंड ग्रेटर देन रेवेन्यू लॉस्ट होगा ना, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, क्या होगा कि जब प्राइस फॉल होगी क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज, एंड व्हेन प्राइस फेल quantity demanded rises by proportionately, comparatively, relatively, 3 words याद रखना, higher, hence the overall revenue rises. तो basically हो ये रहा है कि जब आपकी, so basically rise in quantity demanded of the rise in quantity demanded increases total revenue and hence offsets just a second, and hence offsets the fall in total revenue due to fall in price. So what happens is कि overall your overall revenue increases. जी, ओवरऑल रेवेन्यू राइजेस. ये देखो ना, रेवेन्यू गेन हायर देन द फॉल इन प्राइस. इट राइजेस प्रोपोर्शनेटली हायर देन द फॉल इन प्राइस. ठीक है, देखो हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं ना, हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. ठीक है, अब अगर आप एग्जाम में ये लिखकर आ गए ना कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये दिस इज़ नॉट राइट. Why? The impact on profit is questionable. You can't really guarantee कि profit increase हो रहा होगा या नहीं. हम तो sales की बात करें, revenues की बात करें. Why? The impact on profit is questionable as more units are being produced, which would also increase cost. अब जाहिर सी बात है, जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो फर्म ज़्यादा यूनिट्स भी तो बनाएंगे. When more units will be demanded, firms will end up producing more units. If they end up producing more units, this will obviously increase cost. And since you don't have the cost figures in mind, you can't really comment on the fact that whether profits will rise or not. Because profit is total revenue minus total cost, right? So although total revenue is rising, but you don't know about total cost. Maybe total cost is rising significantly higher, right? So you can't comment on the amount of profit that the company is actually gaining, because the cost information would be needed to be known to work out whether profit would rise or not. Since you don't have the cost information in front of you, you can't really comment on the fact that whether profits will be rising or not. समझ आ रहा है शावेज फरहान, सॉरी, क्लियर हो रहा है? क्लियर है, गुड. ठीक है, सो ये आपने बात कर ली, तो ये आपने एक तरीके से बता दिया. अब दूसरा आप ये बोलेंगे कि फिर आप ये बोलेंगे लेट्स से इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड बस, जस्ट अ सेकंड. नोट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे कल ही उसके क्रॉस इलास्टिक के भी डाले, पीडी के भी डाले. इंस्टाग्राम पे देखते रहो. बुकलेट ऑलमोस्ट इंशाल्लाह रेडी है. मैंने उनको फाइनल भेज दिया, बस अब वो प्रिंट करा के तुम लोग को दे देंगे. हाँ यार, वो तो तुम्हें उनसे ही पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं पता. सर ऐसे से तुम लोग आज जाके पूछे ना कि सर आदिल की बुकलेट तो पूछ लोगे. अभी पूछे ना कि सर आदिल से, सर आदिल, हाँ
नहीं, ये मुझे नहीं पता, मेरे जाने के बाद ये ना हो कि मैंने भेजा है, मुझे मैंने जाने दे फिर। उसमें सारे नोट्स हैं, सारे माइक्रो के सारे हैं, फिर मैक्रो की बुकलेट दिसंबर के बाद जनवरी में दूंगा, शुरू से लेकर एंड तक माइक्रो के। अच्छा उसमें इधर देखें, इधर 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 जो नोट्स है ना मेरे, उसके अंदर ना मैंने वो भी डाले हुए हैं, चार्ट्स और फिगर्स भी डाले हुए हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आपने इतना चार्ट्स क्यों डाले हुए हैं। मसला ये है कि बच्चों को चार्ट्स को एनालाइज करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। एमसीक्यूज अगर तुम देखो ना तो 2-3 चार्ट्स के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, तो बच्चों को रेगुलरली, जो बच्चे डिफरेंट जगहों से नोट से पढ़ रहे होते हैं ना, उनको आदत नहीं होती कि चार्ट्स को भी एनालाइज करना होता है। तो इसलिए मैंने चार्ट्स बेसिकली इसलिए डाले हैं ताकि तुम लोग जब उसमें चार्ट्स को भी हम साथ साथ एनालाइज कर लेंगे, तुम लोग को बता दिया करूँगा इसको इस तरीके से पढ़ना है, तो वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। लेकिन खाली नोट से नहीं पढ़ना होगा, नोट्स में पॉइंटर्स हैं, डेप्थ एक्सप्लेनेशन तुम्हें इसमें देखनी होगी।